Hello and welcome in English Learning Channel. In this channel, you will learn each and every basic thing of English grammar. And if you follow this channel regularly, you will understand each and every minor thing of English grammar. So, today we are going to start our first chapter, that is parts of speeches. Parts of speeches are formed by the function of that particular word in that particular sentence. As we know that how the words are formed by the collection of the letters. Okay, many letters come together and word is formed. But do we call all collection as a word? No. The collection of meaningful letters is called word. And the second step of English grammar is word. There are many types of words. Those are called parts of speeches. Those parts of speeches we will discuss in this chapter. And this is the first video of this chapter. In this video, we will discuss the introduction of parts of speech, and also we will discuss the first part of speech, noun, and its subtype. You will enjoy whole video. So don't forget to subscribe my channel to learn English grammar in a simple way. In a simple language, I will teach you the English grammar. You will understand each and every minor thing of English grammar. So, I am starting my series with this basic chapter. So, let's continue our first chapter, parts of speeches. So, first, I will give you one example, and with the help of that example, we will understand how parts of speeches are formed. So, to make you easy to understand, I will use Hindi language also, because there are many students who doesn't understand English. So, I will make this easy by using two languages, English and Hindi. First I will speak in English, then I will translate same sentence into Hindi, then you will understand very easily. तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने वाले हैं. सो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते कैसे हैं. तो वर्ड का उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, उसके बाद उस वर्ड का एक टाइप बन जाता है. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. द एग्जांपल इज महेश इज प्लेइंग अ क्रिकेट बट alas he got injured badly, but in the match he played a beautiful game. So there are number of words in one sentence, and each and every word has its own function, and according to that function its type is formed. So let's take first word Mahesh. So we know that Mahesh is the name of a person. महेश एक व्यक्ति का नाम है. तो महेश की जाति क्या होगी, उस शब्द की जाति क्या होगी, तो महेश इज अ नाउन. उसके बाद इज आता है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है. जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद है प्लेइंग, खेलना. खेलना एक क्रिया है.
और ये शब्द यहाँ पर एक क्रिया दर्शा रहा है, सो इट इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट एक खेल का नाम है, सो इट इज अगेन अ नाउन। उसके बाद है बट, तो बट क्या कर रहा है, सो इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। द फंक्शन ऑफ बट इज व्हाट, इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। बट ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए उसकी जाति हो जाती है कंजंक्शन। उसके बाद है अलास, इट इज एन एक्सप्रेशन व्हेन समथिंग बैड इज हैपेंड। जब कुछ बुरा होता है तो हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं अलास। सो ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, तो इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो एक इंटरजेक्शन है, तो उसकी जाति हो जाती है इंटरजेक्शन। उसके बाद उसके बाद है ही। तो हमने इस सेंटेंस में ही का उपयोग कहां पर किया है, तो ही किसके जगह पर आया है। तो पहला सेंटेंस और इसका सेंटेंस में कुछ आपको रिलेशनशिप नजर आता है क्या, वो देख लीजिए। महेश इज प्लेइंग अ क्रिकेट बट अलास ही गॉट इंजोर्ड। महेश क्रिकेट खेल रहा है पर वो इंजोर्ड हो गया। तो कौन इंजोर्ड हो गया है, ही। और ही किसके लिए आया है, महेश के लिए। तो महेश के जगह पर, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर नाउन, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने उसके जगह पर एक शब्द यूज किया है ही। सो जब हम किसी प्रॉपर नाउन के जगह पर किसी शब्द का यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोनाउन। सो ही इज अ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। उसके बाद गॉट इंजर्ड इज अगेन वर्ब, बैडली, बुरी तरह से, तो ये है एडवर्ब। बट अगेन इट इज अ कंजंक्शन इन। उसके बाद आता है इन। जो इन है वो हमें द मैच, इन द मैच, द मैच इस नाउन का रिलेशनशिप उसके पहले आने वाले शब्दों के साथ हमें वो दिखा रहा है। When the word shows the relationship with a noun or verb or a sentence, it is called a preposition, और उसको नाम से पहले आता है उसे हम कहते हैं preposition. Again, he is a pronoun, played is a verb, is article. Beautiful game, beautiful, खूबसूरत खेल। तो beautiful ये क्या कर रहा है, एक नाम की विशेषता बता रहा है। सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो ये 8 शब्दों की जातियां हैं। दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी वन। सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज अ नाउन। तो आज हम पहला जो अपनी पार्ट ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है नाउन। सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। सो बाय पॉजिंग द वीडियो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही खूबसूरती से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में ही कहीं पर फ्लैश कर दूंगा। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपने स्किप किया तो वो नंबर मिस हो जाएगा। आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ नहीं सकेंगे। सो इसको जल्दी से लिख लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हम हमारे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा नाउन। अब नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ वर्ड that names something, either a person, place or thing or animal. किसी व्यक्ति का, किसी ठिकान का, किसी वस्तु का या किसी प्राणी का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। A noun is a word that names something, either a person, place, thing or an animal. वहां पर एक एनिमल भी आप
ऐड कर दीजिएगा। तो नाम किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, किसी ठिकान, किसी वस्तु या किसी प्राणी का जो नाम होगा उसे हम नाम कहेंगे। अब नाम के कुछ रोल होते हैं। जब आप सेंटेंस में ये नाउन ऐड करेंगे तो उसके कुछ रोल हमें दिखाई देंगे। Noun as a subject, we can use noun as a subject, we can use noun as a direct object, we can use noun as an indirect object, we can use noun as a subject complement, we can use noun as an object complement, as an appositive और as an adjective। तो उसके सबके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। So I will show the example of nouns function. So first please note down that noun has some functions in the sentence, some role in the sentence. In a sentence, nouns can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive और adjective। ये noun के कुछ रोल हमें सेंटेंस में दिखाई देंगे। तो वन बाय वन इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। So first let's see noun as a subject. So first of all you should know that what is subject, what is object, what is complement, what is appositive, adjective we will discuss later. ये आपको in short में बताता हूँ। Subject is a doer who does an action in the sentence is called subject. जो सेंटेंस में क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तब मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करूंगा। आज थोड़ा सा जल्दी में निकलते हैं। प्रकाश इज प्लेइंग अ कार। हु इज प्लेइंग अ कार? आस्क हु क्वेश्चन टू द वर्ब, यू विल गेट द सब्जेक्ट। यदि आपको सब्जेक्ट चाहिए तो वर्ब को सिर्फ हु क्वेश्चन, हु कौन, ये क्वेश्चन पूछिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन कार खेल रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश ये एक नाउन है और ही इज working as a subject in this sentence. Then let's see noun as a direct object. There are two kinds of objects, direct object and indirect object. Direct object is generally the name of non-living thing. Okay, yeah, when you ask what question to the verb you will get the answer, and that is called direct object. Pooja is singing a song. What Pooja is singing? You will get the answer, a song. So a song is a direct object and a song is a noun. So noun play the role of direct object in this sentence. अब डायरेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट का दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी हाउ नाउन वर्क एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जनरली द नेम ऑफ लिविंग थिंग। Or if you ask whom question to the verb, you will get the answer. It is an indirect object. जब आप verb को whom question, किसको, ये क्वेश्चन आप जब पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा indirect object. She has given a pen to Nita. She has given a pen to Nita. Whom she has given a pen, you will get the answer Nita, and Nita is the name of a person. It is a noun, and in this sentence Nita play the role of the indirect object. Let's see the next role of the noun. Noun as a subject complement. जब वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो जब सब्जेक्ट को पूरक होता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पुष्कर इज अ गिफ्टेड एथलीट। गिफ्टेड एथलीट, सो एथलीट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द सब्जेक्ट. इट गिव्स द some extra information about the Pushkar. He is a athlete. It is not adjective. Athlete is not adjective. It is a noun, and it gives some more information about the noun. It means that it is a complement. तो इस सेंटेंस में एथलीट क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट का काम इसमें करता हुआ हमें दिखाई देता है, जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब नाउन का अगला रोल है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई नेम्ड माई सन आदित्य। मैंने मेरे बच्चे का नाम आदित्य रखा है।
what is the object in this sentence? My son. Whom named? My son. और my son का इंफॉर्मेशन आदित्य वर्ड दे रहा है. So आदित्य is the object complement. Aditya is not for I, it is for my son. So Aditya is a object complement. Noun का अगला रोल है appositive. My father, a teacher, spent his time in garden. If you remove the word teacher from this sentence, then also you will get the meaning. But it is a appositive. For it is not O double P O, appositive not, it is a appositive. Okay, it is very important. Okay, you should know what is appositive. Appositive का मतलब आपको आना जरूरी है. You should understand what does appositive mean. I know that many students are thinking that appositive means viruddha. It does not mean. It is upayukta. Okay. So noun sometimes work as a appositive also, and noun work as a adjective also. Let's see one example. Sinde sir is an English teacher. Sorry, here should be Anna. Is an English teacher. So English is a noun actually, but it gives extra information about the another noun, teacher. It should be adjective. Okay, so noun work as an adjective in this sentence. So these are some roles of the noun. Let's discuss some types of the noun. Types of the noun. So the first type of noun is a proper noun. Second one is a common noun. Third one is a collective noun. Fourth one is an abstract noun. Fifth one is a countable noun. And the sixth one is an uncountable noun. So these are the 6 types of noun we will discuss in this video. So first note down and then we will discuss. So let's start to discuss the first type of a noun, proper noun. Proper noun. So first you should know that what is proper noun. Proper noun क्या होता है? किसी व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम रखते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. द नेम इज गिवन टू अ पर्सन, थिंग और एनिमल और अ सिटी इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, अ थिंग और एन एनिमल, अ सिटी एक्सेट्रा टू मेक इट मोर स्पेसिफिक. मान लीजिए मैं टीचर हूं और मुझे क्लास में किसी बच्चे को खड़ा करना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा बच्चों खड़े हो जाओ, ये बच्चे खड़े हो जा, ऐसा मैं नहीं कह सकता. अब कौन सा बच्चा है जिसे मुझे खड़ा करना है? विच चिल्ड्रन आई वॉन्ट टू मेक स्टैंड अप. किस बच्चे को मुझे खड़ा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस बच्चे का नाम पता होना चाहिए. आई शुड नो द नेम ऑफ दैट student. Okay, then Mahesh stand up, I can say. Then that particular Mahesh will understand. Okay, I make it more specific. Okay, to make the noun more specific we give the name which is called a proper noun. किसी व्यक्ति को नाम देते हैं हम, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को, किसी शहर को, किसी ठिकान को हम जो नाम देते हैं, पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं.
Some examples: Prakash, Dell laptop, Tommy, Mumbai. Okay, these are the some of the examples of a proper noun. अब proper noun के दो फीचर्स है. देयर आर द टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द प्रॉपर नाउन. जैसे कि पहला फीचर क्या होता है उसका, जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं उसका पहला जो लेटर होता है इट शुड बी कैपिटल. और दूसरा फीचर क्या होता है, इट इज अ वन ऑफ अ काइंड आइटम्स. वो एक ही प्रकार का आइटम होता है. महेश कहेंगे तो ऐसे 100 बच्चे नहीं खड़े होंगे. यदि क्लास में 2-3 होंगे तो वो कंफ्यूज होंगे. ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को हम कह रहे हैं. ओके, सो दे नेम स्पेसिफिक वन ऑफ अ काइंड. दिस इज द फर्स्ट फीचर. और उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. वो कहां भी सेंटेंस में हो, जिधर भी सेंटेंस में हम लिखते हैं महेश, प्रकाश, ये जब भी हम मेंशन करेंगे, जब भी हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. दे बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस. अब हमें पता होता है कि प्रॉपर नाउन तो स्पेसिफिक है, वो जेनरिक नहीं है. वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नेम होता है. सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स इन अ प्रॉपर नाउन. इट इज वेरी सिंपल. तो प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश है, ये महेश है, ये सुरेश है, ये मिस्टर खन्ना अंकल है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं. या प्रॉपर नाउन किसी थिंग का नाम हो सकता है. जैसे कि ये है ताजमहल. तो ताजमहल कहेंगे तो आपके ध्यान में क्या आएगा, सिर्फ ताजमहल आएगा, कोई और चीज आ सकती है क्या? नहीं. सो इट इज अ पर्टिकुलर, इट इज अ स्पेसिफिक. और किसी प्राणी का भी वो नाम हो सकता है. टॉमी है, इसका नाम है मान लीजिए मिसी है, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनका भी. और ये है मान लीजिए ये है अपनी मुंबई है. किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी मुंबई का, किसी सिटी का जो स्पेसिफिक नेम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, सो प्लीज नोट डाउन इट फास्ट, देन वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप, कॉमन नाउन. ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए. लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन क्या है? अब हमने प्रॉपर नाउन के बारे में क्या देखा था, व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन. इट इज नॉट अ जेनरिक. इट मीन्स दैट कॉमन नाउन इज अ जेनरिक नेम, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक नेम. Okay, so definition of a common noun is, a common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or a group. उस पर्टिकुलर क्लास में, एक क्लास मतलब आपका क्लासरूम नहीं, जो ग्रुप होता है, जो वर्ग होता है, उसमें हम जो एक जेनरिक नाम, जनरल नाम जो दे देते हैं उस ग्रुप को, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. जैसे कि मान लीजिए खिलाड़ी. अब खिलाड़ी जब हम बोलते हैं तो कौन सा खिलाड़ी, क्या सिर्फ आपको सचिन तेंदुलकर याद आएंगे, या महेंद्र सिंह धोनी याद आएंगे, या सहवाग याद आएंगे, या विराट कोहली? नहीं, खिलाड़ी मतलब कोई भी हो सकता है. वो फुटबॉल का खिलाड़ी हो सकता है, वो क्रिकेट का हो सकता है, वो हॉकी का हो सकता है, किसी का भी. मतलब एक क्लास को जो खेलता है, क्या भी खेलता हो, जो खेलता है उसे हम खिलाड़ी कहेंगे. सो इट इज अ जनरल नेम. मान लीजिए बॉय कहेंगे. बॉय कहेंगे तो आपके जहन में कौन, सिर्फ आपका भाई आ जाएगा? नहीं, बॉय तो एक पर्टिकुलर इमेज विल फॉर्म इन योर माइंड व्हेन दैट जनरल नेम इज प्रोनाउंस्ड. जब वो हम जनरल नेम लेते हैं तो एक नेम आपके ध्यान में आ जाता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे, जनरल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. और कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रादर देन स्पेसिफिक वंस. स्पेसिफिक नेम देने की बजाय हम जब एक जनरल नेम उस ग्रुप को दे देते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. सो कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रादर देन स्पेसिफिक वंस. अब मान लीजिए कॉमन नाउन आपको देखना है, तो आपके लिविंग रूम में जाइए, आपको क्या दिखाई दे रहा है?
लैम्प दिखाई देगा, चेयर, काउच, टीवी, विंडो, पेंटिंग, पिलो, कैंडल, लैपटॉप, light, photos, bottle, mobile. So these are the general names. These are not, we are not giving them specific name. आपका मोबाइल भी मोबाइल है, आपका भाई का मोबाइल भी मोबाइल ही है. It is a general name of that atom. Okay? So अब इस कॉमन नाउन के कुछ रूल हम देखेंगे. ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स लिखिए या कुछ एग्जाम्पल लिखिए. अब प्रॉपर नाउन जैसे हम कैपिटल लेटर में मेंशन करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं. कॉमन नाउन में वैसा कुछ कैपिटलाइज्ड नहीं होता. यदि वो सेंटेंस के शुरुआत में आता होगा तो हम उसे लिखेंगे. अनलाइक प्रॉपर नाउन्स, अ कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड unless it either begins a sentence or appears in a title. यदि वो टाइटल में आ रहा है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, तो हम उसे कैपिटल कहेंगे. और कॉमन नाउन्स कैन बी कॉन्क्रीट. कॉमन नाउन क्या होते हैं? सेंसेस को एकदम कॉन्क्रीट होते हैं. और इसका थर्ड वन है अ फ्रीक्वेंट स्पेलिंग एरर पीपल मेक टू कैपिटलाइज कॉमन नाउन्स अननेसेसरली. बहुत बार ऐसा होता है कि कॉमन नाउन का अननेसेसरली आप क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं. कुछ एक एरर्स भी उसमें होते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. जैसे कि ये सेंटेंस है, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. मेनी पीपल राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रेसिडेंट P in a capital. Actually, it is incorrect. President is a common noun. So, unnecessarily many people write the first letter of president capital. So, correct. This one is correct. P should not be a capital. George Washington was the first president of the United States. So, this is the correct one. So, these are some rules and some mistakes which people make unnecessarily with the common nouns. So हम common noun किसे कहते हैं? ये common noun के कुछ examples है. dog, अब इसको हम cat, अब इसको हम कुछ नाम नहीं दे रहे हैं. cat मतलब किसकी भी कैट, मेरी भी कैट है, मेरे पड़ोसी की भी कैट है, वो सब प्रजाति उसमें आ गई. बॉय, बॉल, हाउस, flower. So these are the some examples of common noun. अब अगला डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन. इस वीडियो का आखिरी नाउन हम डिस्कस कर रहे हैं. बाकी की जो 3 है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. सो लेट्स सी द कलेक्टिव नाउन. फर्स्ट, नोट डाउन. इसे आप नोट डाउन कीजिए और कलेक्टिव नाउन की तरफ हम आप चलते हैं. अब कलेक्टिव नाउन हम किसे कहेंगे? अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. पीपल, एनिमल, थिंग के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शब्द का हम उपयोग करेंगे उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. सो these are the group of people, group of birds, group of another people, group of flowers. So this is a crowd, this is a flock, this is a musical band, this is the bouquet, so or bunch of flowers. So these are the collective noun: crowd, flock, musical band, bunch of flower, bouquet. So these are the collective noun. So a collective noun is the word used to represent a group of people, animals or things. अब कुछ कलेक्टिव नाउन के हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि फ्लॉक एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्राउड, कमिटी, ग्रुप, टीम, ये कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है. अब कलेक्टिव जो कॉमन कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर पीपल के लिए हम कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स भी
यूज करते हैं, जैसे कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, अ कोर ऑफ सिंगर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल। अब कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स एनिमल के लिए जो हम यूज करते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, a flock of sheep, a herd of deer, a hive of bees, a school of fish। अब कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन जो हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, a bouquet of flowers, a bunch of flowers, a fleet of ships, a forest of trees, a galaxy of stars। So these are the collective noun। So in short, in this video we discuss the introduction of part of speech, and also we have discussed the first part of speech, noun. In that, its first three types we have discussed: proper noun, common noun, and collective noun। So in the description I have given one link for the test। एक टेस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। वो टेस्ट 10 क्वेश्चंस की है, वो आपको सॉल्व करनी है उस लिंक पर क्लिक करके। तो वो लिंक मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर मत क्लिक कीजिएगा, उसे आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ही क्लिक करना है। So this is an assignment, link is given in the description for an assignment, this is the link। या इसको आप टाइप कीजिए आपके ब्राउज़र में, डायरेक्टली आपको ये टेस्ट ओपन हो जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है उस पर क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट टेस्ट में आपका नाम उसमें मेंशन करना है और टेस्ट खुल जाएगी। सिर्फ 4 ऑप्शन दिए है या ट्रू और फॉल्स दिया है, उसको सिर्फ आपको क्लिक करना है और आपको सबमिट करना है। आखिर में आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि किसका आंसर करेक्ट है, किसका आंसर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और आपको उसके हिसाब से मार्क्स भी दिखाई देंगे। और जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी आपको दिखाई देगा। So see you in the next video. In next video we will discuss another 3 types of noun: abstract noun, countable noun, and uncountable noun। Okay, so thank you very much. Don't forget to subscribe my channel. Please like it or dislike it. If you don't like the video, please dislike it. If you like the video, please like it. And if you want some improvement in me, so please suggest in comments. I will take them positively and I will try to correct them। Thank you very much. See you in next video।